Good evening, guys. So this is the third and most probably the final video of the chapter that we were doing. That is the 100 dresses one, and we discussed till that point of time where we find that Wanda has been absent from the school. Wanda has been absent from the school for last 3 days, and no one noticed except for the day when the two girls who usually made fun with Wanda, that is Peggy and Maddie, whose good name is Madeline. So Peggy and Maddie one day were waiting for him, and she didn't come, and they became late for the school. And then there was a lot of things that we discussed about how Peggy thinks that since Wanda is different from her, our name is different, and she comes from a very different place from which many of the students of the school don't come. So it is justified for Peggy to make fun of Wanda or to harass him or to torture him or tease him, right? And how Maddie was in a dilemma that whether to do or not, like how to deal with the thing, right? That she herself being a poor girl, she usually find it little difficult to like when this whole thing goes on, this whole teasing thing and harassing thing goes on with Wanda, and she feels that Peggy should stop making fun of Wanda, and but she could not protest, and she decided to write a letter to him, but she didn't, because she thought that if they stop making fun of Wanda, then the next target will be her, as she is a poor girl, and they might ask him about her dress, which are mostly second-hand ones. And at the same time, she felt that the Peggy being a very popular girl and very good girl, so whatever she might be doing, she might be right in other things. So we discussed till that point of time. We discussed the character of Wanda का character थोड़ा हमने discuss किया, हमने Peggy का character discuss किया, and we also discussed Maddie's character as well. So now we'll come towards the end of the chapter. Okay, so please come to the page 68 and second last paragraph, which starts with thinking. So as these people were in the class and Wanda was absent, वो लोग क्लास में थे, and they were doing a lot of things like arithmetic, maths and other thing, वो सब कर रहे थे. लेकिन मैडी जो है वो बार बार सोच रही थी कि वांडा के साथ क्या हुआ, मतलब नहीं होना चाहिए था. उसने सोचा कि वो पेगी को एक चिट्ठी भी लिखे, एक नोट लिख के बोलेगी कि तुम ऐसा ना करो उसके साथ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है. ठीक है, उसको भी बुरा लगता है, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि उसके दिल में एक डर था कि कहीं अगर उसने ऐसा कुछ बोला तो नेक्स्ट शायद उसी के साथ ये लोग ऐसा करेंगे, राइट. उसका फन उड़ाएंगे, बोलेंगे कि उसका ड्रेस कहाँ से लिया, तो उसको बोलना पड़ेगा कि वो सेकंड हैंड ड्रेस है, वो भी पेगी का पुराना ड्रेस है, राइट. ये सब हम लोगों ने पढ़ा. तो यही सोचते अचानक से उसको याद आया कि उसके क्लास में एक ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था. ठीक है, ड्राइंग कंपटीशन हुआ था. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. मैडी सोच रही है. ठीक है, thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and the coloring contest. तो वो जब ये सब सोच रही थी तुम्हारा वांडा के बारे में, ये सब अचानक उसके सोचते अचानक उसके दिमाग में आया कि उसके क्लास में एक ड्राइंग और कलरिंग का कंपटीशन होने वाला है, और वो सोच रहे थे कि कौन जीतेगा इसमें, मतलब कौन जीत सकता है. और वो कंपटीशन जो था वो लड़कों के लिए अलग था, लड़कियों के लिए अलग, मतलब लड़कियां कुछ अलग ड्रॉ करेगी और लड़के कुछ अलग ड्रॉ करेंगे. ठीक है. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. तो लड़कियों के लिए ये कॉन्टेस्ट क्या था, ड्रेस को डिज़ाइन करना, उसको कलर वलर करके रखना, और लड़कों के लिए था कि वो एक मोटर बोट का डिज़ाइन, मतलब मोटर बोट जो होता है, ठीक है, जो बोट जो मोटर से चलता है ना, जो तुम्हारा कैरी वो बोट्स वो सब होता है, वो डिज़ाइन करके उसको सुंदर करके कलर करके एक पेपर में ड्रॉ करके सबमिट करना है. और लड़कियों को वो तुम्हारा उसमें सबमिट करना है, तुम्हारा एक ड्रेस डिज़ाइन करके उसको सुंदर से कलर करके सबमिट करना है कंपटीशन के लिए. Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. तो मैडी सोच रही है कि लड़कियों का मेडल मोस्ट प्रोबेबली पैगी ही जीतेगी, मतलब लड़कियों का कॉन्टेस्ट पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी बहुत अच्छे ड्रॉ करती है और उसकी तरह कोई इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता रूम में. और वो क्या करती है,
एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट। और सिर्फ वही नहीं, मतलब सिर्फ मैडी ही नहीं सोचती कि पैगी ही जीतेगी क्लास में, क्लास के ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि वो क्या करेगी, शी वुड कॉपी अ पिक्चर इन ए मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। तो वो क्या करेगी, वो किसी मैगजीन से किसी फिल्म स्टार का पिक्चर लेगी, उसका ड्रेस करेगा, उसको वो कॉपी करके सुंदर करके दे देगी कि ऐसा लगेगा कि वही फिल्म स्टार का पोर्ट्रेट उसने बनाया है, ठीक है। तो ऐसा करके वो जीत जाएगी, और शायद वो जीत रही थी इतने साल से, इसीलिए वो लोग कॉन्फिडेंट है कि उनके क्लास में, दैट इज रूम 13 जो है, उनके क्लास में पैगी ही लड़कियों का कंपटीशन जीतेगी, और लड़कों का कौन जीतेगा ये नहीं बोल सकती थी मैगी। ओह, मैगी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैगी ऑलमोस्ट श्योर थी कि पैगी ही लड़कियों वाला कंपटीशन जीतेगी, ठीक है। वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। और उस कंपटीशन का विनर्स कब डिक्लेयर होने वाला था, दूसरे दिन, ठीक है। दूसरे दिन उस कंपटीशन का विनर डिक्लेयर होने वाला था, तब वो लोग समझ जाएंगे कि मतलब जान जाएंगे कि कौन विनर है उस कंपटीशन का, ठीक है। तो यही सोचते सोचते वो दिन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दिन, so the next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. तो दूसरा दिन था जिस दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था स्कूल का, उस दिन ड्रिजलिंग हो रहा था, मतलब हल्का हल्का बारिश हो रहा था, ठीक है, हल्का हल्का बारिश हो रहा था तुम्हारा। और मैडी और पैगी जो थे वो जल्दी जल्दी स्कूल आ रहे थे, और कैसे आ रहे थे, पैगी के अम्ब्रेला के मतलब नीचे, ठीक है, क्योंकि मैडी के पास शायद अम्ब्रेला नहीं था क्योंकि वो गरीब थी, ठीक है। तो वो पैगी के अम्ब्रेला के नीचे वो लोग जल्दी जल्दी आ रहे थे स्कूल। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of the Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogging Heights. तो ऐसे क्या होता है, इस तरह के दिन, मतलब जो बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट दिन होता है, मतलब उन लोग का कंपटीशन का रिजल्ट होने वाला था, ऐसे दिनों में वो ज़्यादातर वांडा के लिए वेट नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग जल्दी जल्दी स्कूल में चले जाते थे, और वो लोग ज़्यादातर वांडा का वेट कहाँ करते थे, ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। तो एक स्ट्रीट है, ठीक है, वो स्ट्रीट है, एक गली है, गली का नाम है ओलिवर स्ट्रीट, और उसके जो कॉर्नर है, उसके जो मतलब मोड़ है, ठीक है, जो टर्निंग है, उस टर्निंग में वो लोग वेट करते थे। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंग हाइट्स। और वो जो स्ट्रीट था वो काफ़ी दूर था उन लोगों के घर से, मतलब वो जिस डायरेक्शन से आते थे, दैट इज़ मैडी और पैगी, उससे काफ़ी दूर है। और कहाँ पे है, उसके ऊपर जो है वो रेल जा रहा था, मतलब किसी रेलवे के ब्रिज के नीचे ही वो शायद है, ठीक है। तो उसके ऊपर से रेल रोड जा रहा था, उसके नीचे वो स्ट्रीट है, ठीक है। और उस स्ट्रीट के एक तरफ से क्या होता है, एक तरफ से रास्ता जाता है एकदम पूरा स्ट्रीट, मतलब पूरा टीले की तरह एकदम हाइट ऊपर जाता है, ठीक है। एकदम ऊपर एक टीला है जो कि है बॉगिन हाइट्स, मतलब जो जहाँ से वांडा आती है, ठीक है। तो वो लोग अपने घर से काफ़ी दूर पैदल आते हैं, वो रेल स्टेशन, मतलब रेल रोड जो है, ऊपर से रेल जाता है, नीचे वो स्ट्रीट है, ठीक है, नीचे में वो स्ट्रीट है, और उसके टर्निंग में वो लोग वेट करते हैं, क्योंकि वो टर्निंग का एक तरफा जो है वो एकदम ऊपर जाके एकदम थोड़ा स्टीप है, मतलब टीला की तरफ जाके, और उस टीले के ऊपर बॉगिन हाइट्स, तो वहाँ पे ज़्यादातर वो लोग वांडा का वेट करते थे। लेकिन उस दिन वो लोग वेट नहीं किया वांडा का, ठीक है। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. तो उस दिन वो लोग चांस नहीं लेना चाहते कि वांडा आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ऊपर से वांडा का आना ना आना तो इम्पोर्टेंट नहीं था, उन लोगों का इम्पोर्टेंट था उसको लेके मज़ा करना, उसको लेके टीज करना। तो वो सब उन लोग को, मतलब उस दिन इतना ज़्यादा उन लोग को इच्छा नहीं था या फिर कंसर्न नहीं थे, उन लोगों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उस दिन वो कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था, राइट, ड्राइंग कंपटीशन का। तो वो लोग जल्दी जल्दी स्कूल आ गए, ठीक है। तो आते वक्त वो लोग बातें कर रहे थे, ठीक है, दैट इज पैगी एंड मैडी। डू यू थिंक मिसेस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? ओह, आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन बैक। तो पैगी और मैडी बातें कर रहे थे, पैगी और मैडी बोल रहे थे, पैगी बोल रहा था कि तुम लोग, मतलब पैगी मैडी से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मिसेस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, विनर का नाम अनाउंस कर देंगे? तो मतलब मैडी बोल रही थी कि हाँ, मुझे भी लगता है कि पता चली जाएगी, द मिनट विल गेट इन, जब हम क्लास में पहुंचेंगे हम लोग को पता चली जाएगा कि रिजल्ट आज विनर का नाम अनाउंस होगा या नहीं। तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन जीतेगा क्या नहीं, ठीक है। पैगी मैडी से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस मेसन, मतलब उन लोग का टीचर जो है,
ठीक है, मिस मेसन जो है वो क्या जूनियर का नाम डिक्लेयर करेगी। तो मेडी बोली थी हाँ हम लोग जब मतलब क्लास में पहुँचेंगे तभी पता चलेगा, मुझे भी लगता है कि आज ही डिक्लेयर करेगा। और फिर मेडी ने कहा कि तुम चिंता मत करो पैक, मतलब पैगी को वो पैक कह कर बुलाती है, तुम चिंता मत करो पैक, तुम ही जीतोगी। तो पैगी भी बहुत ईगरली बोली, बहुत एक्साइटेड होकर बोली होप सो मैं भी जीतूँ, मैं ही जीतूँ। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जब वो लोग क्लास में पहुँचे, द मिनट दे एंटर द क्लास, जब वो क्लास में पहुँचे तो वो थोड़ा रुक गए, ठीक है, रुक के वो लोग गास्ट मतलब सरप्राइज हो गए, ठीक है। तो कुछ ऐसा देख लिया जिसको देख के वो लोग थोड़ा मतलब सरप्राइज हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए, ठीक है, उन लोग को थोड़ा मतलब चौंक गए वो लोग, ठीक है, मतलब क्लास में घुसते हुए थोड़ा थम गए। क्या देखा उन लोगों ने? देयर वे ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्लास के चारों तरफ ड्राइंग्स लगे हुए थे, एग्जीबिशन का मतलब की तरह, ठीक है, जैसे एग्जीबिशन में होता है ना हमारा पेंटिंग्स पूरा ऐसा लगा होता है क्लास में, तो उस क्लास में भी चारों तरफ ड्राइंग्स लगे हुए, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे थे? ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरा जो रूम 13 था उन लोग का जो क्लास था पूरे क्लास में लगा हुआ है। ऑन ऑल द लेजेस, लेजेस मतलब जो हुक्स होता है, ठीक है, जो हुक्स जहाँ पे वो टंगा हुआ रहता है ना तुम्हारा जो कैलेंडर्स वाला जिस हुक में टंगा होता है, जितना भी हुक्स है क्लास में सब हुक्स में है। विंडो सील्स में मतलब तुम्हारा खिड़की का जो वो है, खिड़की का उसको पार्ट बोलते हैं, ठीक है, खिड़की के जो दरवाजे हैं उसके ऊपर पूरा खिड़की का जो वो है, खिड़कियों के ऊपर सब पूरे क्लास में ये लगा हुआ है, ठीक है। और क्या, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। वो ड्रॉ किस चीज़ पे किया हुआ है? रैपिंग पेपर पे, मतलब जो यूजुअल पेपर जो होता है जिसको रैप किया जाता है चीज़ें, ठीक है, पहले के दिनों मतलब ये उस समय लिखा गया जब पॉलीथीन बैग नहीं था, याद रखना, ठीक है, जब पॉलीथीन बैग नहीं था तो ज़्यादातर लोगों को चीज़ें कैसे दिया जाता था, ऐसे ही पेपर बैग्स या फिर पेपर में रैप करके। तो वो जो पेपर था रैपिंग पेपर, जिसको हम लोग मतलब जिससे आज हम क्या करते हैं, हम लोग बुक्स और कॉपीज़ जो कवर करते हैं रैपिंग पेपर, वही रैपिंग पेपर। तो ज़्यादातर ही ड्राइंग किस चीज़ में क्या होता है, सब बड़े बड़े रैपिंग पेपर्स में ड्रॉ करके दिया गया था, मतलब प्रॉपर ड्राइंग पेपर में भी नहीं था, ठीक है। वो डैज़लिंग था, मतलब बहुत सुंदर था दिखने में, ठीक है, कलरफुल था, ब्रिलियंट था, मतलब बहुत सारा कलरफुल, मतलब आँखों को चौधिया देने वाला, ठीक है, लेविश डिज़ाइंस भी बहुत सुंदर थे, मतलब बहुत ग्रैंड थे, ठीक है, ग्रैंड डिज़ाइंस थे, ठीक है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और जितना मतलब ड्राइंग्स चारों तरफ था देख के लग रहा था ऑलमोस्ट 100 डिज़ाइंस तो होंगे, ठीक है, और सबको बहुत सुंदर से एकदम लाइन अप करके एकदम ठीक ठाक से लगाया गया था पूरे क्लास में। These must be the drawings for the contest. They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly. और देख के लग रहा था ये शायद वही कॉन्टेस्ट के ड्राइंग्स होंगे, ठीक है, जो कॉन्टेस्ट के बारे में मेडी सोच रही थी पहले दिन, और जिसके बारे में पेगी और मेडी भी बात कर रहे थे, तो वही कॉन्टेस्ट होगा। तो सब लोग ही देख रहे थे, कोई मतलब देख के वो ड्राइंग्स बहुत वो हो रहा था, सरप्राइज हो रहा था, चौंक रहा था, कोई देख के विसल मार रहा था, कोई एकदम धीरे धीरे बात करके उसको एडमायर कर रहा था, उसके बारे में मतलब प्रेज कर रहा था, तो ऐसा चल रहा था। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won the boys, she said, and his designs for an outboard motor was on exhibition in the room 12, along with the sketches by all the other boys. तो जैसे ही क्लास शुरू हुआ, क्लास असेंबल हुआ, क्लास शुरू हुआ, मिस मेसन ने विनर्स का नाम अनाउंस कर दिया। तो लड़कों का विनर कौन था? जैक बैगल्स था, जिसने एक बहुत सुंदर आउटबोर्ड मोटर का एक डिज़ाइन किया, ठीक है, एक मोटर बोट डिज़ाइन किया बहुत ही सुंदर तरीके से, और वो रूम 12 में बाकी लड़कों की पेंटिंग्स के साथ एग्जीबिशन में है, तो ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। एंड देन शी वेंट ऑन टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द गर्ल्स कंपटीशन, ठीक है। तो वो क्या हुआ? As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, and the room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judge, any of the design is worthy of winning the prize. I'm very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. और लड़कियों के कंपटीशन के बारे में बोलते हुए मिस मेसन ने कहा कि मतलब लड़कियों में से ज़्यादा लोगों ने ही सबमिट नहीं किया था डिज़ाइंस, मतलब ज़्यादा लोगों ने ही तुम्हारा पेंटिंग सबमिट नहीं किया था कंपटीशन के लिए,
कुछ ही लोगों ने 1 या 2 पेंटिंग जैसे सबमिट किया था, लेकिन एक लड़की है क्लास में जिसने 100 से ज़्यादा डिज़ाइन सबमिट किया, और उस लड़की को लेके पूरे क्लास को प्राउड होना चाहिए, सबको उस पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। और उसका ड्राइंग्स इतना सुंदर था कि जजेस ने बोला कि उसको 100 सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर 1 या 2 ही वो सबमिट कर देती तो ही वो कंपटीशन जीत जाती, इतना सुंदर उसका ड्राइंग था। और वो लड़की कौन थी? वांडा पेट्रोंस्की। वही जीती थी तुम्हारा लड़कियों का कंपटीशन, ठीक है। मतलब जो कंपटीशन इतने सालों से पैगी जीतते हुए आ रही थी वो जीता था वांडा पेट्रोंस्की ने, ठीक है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope that she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her executive drawings. तो उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ नहीं है उसका मेडल लेने के लिए या फिर उसका प्रेज लेने के लिए, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि मतलब हम आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी क्लास में और तभी हम उसको अपना मेडल देंगे और उसके लिए तालियां बजाएंगे। और अभी तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अभी क्लास के चारों तरफ घूम घूम के थोड़ा धीरे धीरे बिना बात के साइलेंटली ये जो सुंदर पेंटिंग्स है उनको देख लो, मतलब एग्जीबिशन थोड़ा घूम के देख लो क्लास में। The children burst in applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but their fingers in their mouths and whistles, though they were not interested in dresses. और जैसे ही टीचर ने बोला उन लोगों को कि तुम लोग अभी क्लास मतलब अभी मैं जा रही हूँ, तुम लोग क्लास में घूम के देख लो क्या है क्लास में, वो लोग एकदम निकल के आगे, मतलब जैसा होता है ना तुम लोग का क्लास में भी, अचानक अगर टीचर क्लास चलते हुए बोलते कि मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, थोड़ा काम है, तुम लोग शांत बैठना, तुम लोग शांत तो बैठते नहीं हो, ठीक है, तुम लोग उल्टा ज़्यादा चिल्लाते हो, ज़्यादा शैतानी करते हो। तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही टीचर ने उन लोगों को बोला एकदम सब एप्लॉज, एकदम ताली वाली मार के सब निकल के, लड़के भी बहुत खुश थे कि उन लोगों को मतलब बैंक से निकल के क्लास में चलना, मतलब चलने को मिल रहा था, ठीक है। कुछ लोगों ने तो अपने उंगलियां मुंह में डाल के सीटी देना शुरू कर दिया था। वो लोग मतलब लड़के तो ड्रेस को लेकर इंटरेस्टेड नहीं थे कि ड्रेस में क्या है क्या नहीं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि उन लोगों को वो क्लास फ्री मिल गया, ठीक है, वो लोग कुछ भी कर सकते थे उस क्लास में। तो ये सब चल रहा था और उसी बीच पैगी और मैडी भी बातें कर रहे थे। तो लुक पैग, whispered मैडी, that's the blue one she told us about, isn't it beautiful? तो तुम्हारा पैगी और मैडी जब देख रहे थे सारे ड्रेसेस चारों तरफ से, तो उन लोगों की आंखों में वो 2 ड्रेसेस पड़े। रिमेंबर जब मैडी बोल रही थी कि एक समय जब उन लोग पूछते थे वांडा को कि उसके पास कितना ड्रेसेस है क्या नहीं है, तब वांडा कभी कभी कुछ ड्रेसेस का डिटेल्स भी उनके साथ शेयर करती थी। उनमें से 2 ड्रेसेस का डिटेल्स उसने शेयर किया था, ठीक है। एक था एक पेल ब्लू कलर का ड्रेस जिसपे रंगीन जो थ्रेड से उस पर काम किया गया, और एक था जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस जिसपे रेड कलर से कुछ काम किया गया था। तो वही दोनों ड्रेसेस उन लोग के नज़र में पड़ी उन 100 ड्रेसेस में से। तो मैडी ने पैगी को दिखाया कि लुक पैक, विस्पर्ड मैडी कि देखो, ठीक है, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, कि ये देखो वो ब्लू वन, वो पेल ब्लू वन जिसपे रंगीन थ्रेड से काम किया है, जिसके बारे में वो हमें बोल रही थी, ये बहुत सुंदर है ना। तो उसने बोला उसने पूछा कि देखो ये कितना सुंदर है ना। पैगी, yes said Peggy, and there's that green one boy and I thought I could draw। और पैगी भी बोले थे हाँ ये भी सुंदर है, वो देखो वो ग्रीन वाला भी, जंगल ग्रीन वाला, ठीक है, ये भी कितना सुंदर है, और मैं सोचती थी कि मैं ही सबसे अच्छा ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पे देखो कि किस तरह से उन लोगों ने वांडा पेट्रोंस्की को सिर्फ कि वो एक उसका नेम डिफरेंट था, उसका वो डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे आई थी, ठीक है, और वो शायद शांत थी, सबसे बातें नहीं कर सकती, फिर गरीब घर से आती थी, मतलब गरीब मोहल्ले से भी आती, सिर्फ घर से नहीं, एक गरीब मोहल्ले से भी आती थी। तो उसको उन लोगों ने कैसे जज किया? उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये जो लड़की है, दैट इज दिस गर्ल हुज नेम इज वांडा पेट्रोंस्की, शी कुड ड्रॉ सच ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते, क्यों उन लोगों ने किया? क्योंकि उनके दिमाग में पहले से कुछ आइडियाज़ थे कि हमारा जो कैरेक्टर है, हम जिसे है वही नॉर्मल है, वही ऑर्डिनरी वही है, उसके बाहर अगर कोई होगा वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। तो उसी के चलते उन लोगों ने स्पेशली पेगी ने तुम्हारा वांडा के साथ बदसलूकी की। लेकिन बाद में जब वांडा का
टैलेंट सामने आया कि वो भी कितनी टैलेंटेड है कुछ है, ठीक है, तब उन लोगों को मतलब काफ़ी शायद गिल्टी लगा, या फिर उन लोगों को महसूस हुआ कि वो लड़की भी कितनी टैलेंटेड है और हमें उसको उससे जज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो यही है इस फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, ठीक है। और सेकंड पार्ट भी हम लोग शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक ही, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम लोग सेकंड पार्ट शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक ही साथ कंप्लीट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम स्टोरी, सो वी हैव टू कंप्लीट इट साइमल्टेनियसली, वरना वो फ्लो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक को हम 100 डिसेस पार्ट 2 शुरू करेंगे। ये मैं यही ख़त्म करता हूँ। इस चैप्टर में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तुम लोग को, यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके, बाय।